آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ہماری روٹین کی میٹنگ تھی. 2 بجے ہماری میٹنگ ہوا کرتی ہے. لاسٹ SOP کے مطابق 6 وکلاء یا 6 پولیٹیکل لیڈرشپ کو اجازت مرتبہ جیل میں بند کیا ہوا ہے. ہمارے اور خان صاحب کے درمیان ملاقات آج ایسے کمرے میں کروائی گئی جس میں آج شیشے لگائیں تاکہ ہم قریب سے ہو کر کی بات نہ کر سکیں. یہ فرسٹ ٹائم ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. جو ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیے تھے ہمیں اجازت ملی تھی کہ آپ کی ملاقات ہوگی جس طرح روٹین میں ملاقات ہوا کرتی ہے. اس لیے صرف اور صرف ہمارے اور خان صاحب کے درمیان شیشہ لگانا تاکہ ہماری کمیونیکیشن گیپ میں فرق آئے اور ہم ان کو بات نہ کر سکے، یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ شیشہ ہر صورت ختم ہونا چاہیے. ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل کرے اور اس کو ہٹوائے. آج خان صاحب نے شیر افضل مروت کو اجازت دی ہے کہ اس سلسلے میں وہ کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل کرے. ساتھ ہی خان صاحب نے والے واقعہ پہ آپ دعا کرتے ہیں، ان کا IGP اپالوجی کرتا ہے، لیکن ایسا ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. ہماری لیڈرشپ تو کیا، ایون عمران خان صاحب کے گھر پہ بغیر وارنٹ کے اٹیک ہوتے رہے. ان کے پاسپورٹ اور چیک بکس تک وہ لے کے گئے، ان کے فون لے کے گئے، ان کے گھر کے باقی اشیاء لے کے گئے. باپردہ بیوی کو اس کے وقت 20 پولیس افسر انٹر ہو گئے، باوجود اس کے کہ کوئی ریسسٹنس نہیں تھی. چیزوں کو گرایا، توڑا گیا، لیکن اس وقت کسی نے اپالوجی نہیں کی. ہم عدالت آئے، کسی عدالت نے ریلیف نہیں دیا. آج بھی اس سلسلے میں ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. ہم سپریم کورٹ سے بھی استدعا کرتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں عدالتوں سے ریلیف نہیں ملا. ہمارے رائٹس وائلیٹ ہونے پہ کبھی IGP نے اپالوجی نہیں کی. یہ ایک ملک میں 2 قوانین ہے. اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ جو کچھ کرے وہ رائٹ ہے. مائٹ از رائٹ. خان صاحب یہی فرما رہے تھے کہ یہی ریزن ہے کہ لگ یوں نہیں رہا بلکہ انفیکٹ ہو یوں رہا ہے کہ ملک بریک ہو رہا ہے اور انصاف کے اصول پامال ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ہم استدعا کرتے ہیں سپریم کورٹ سے، سپیریئر عدلیہ سے، کہ ہمارے جو پٹیشن ہے پینڈنگ ہے اس پہ بھی سنوائی کرے، اس پہ بھی ہمارے رائٹس پروٹیکٹ کرے. ہماری لیڈروں کے جو رائٹس ہے وہ جو عام شہری کی طرح وہ اپنے رائٹ مانگ رہے ان کی پروٹیکشن کرتے ہوئے تحفظ دے. آپ لوگوں نے دیکھا الیکشن کمیشن نے بھی بارہا ہمارے کینڈیڈیٹ کو ری کاؤنٹنگ کے پیش نظر کے بہانے سے ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کیا. اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے آج اعلان کیا ہے، میں اور عمر ایوب صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پورے لاہور پنجاب میں جائیں گے اور اپنے پارٹی ورکروں کے کنونشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. آپ صاحب نے شیر افضل مروت کی دوبارہ ڈیوٹی لگائی ہے. جہاں الیکشن ہو رہے ہیں بائی الیکشن، یہ وہاں جائیں گے. میرے آپ کی وساطت سے پاکستان تحریک انصاف کے سارے بائی الیکشن کے کینڈیڈیٹس کو پیغام ہے خان صاحب کا کہ جلد سے جلد آپ 19 تاریخ تک اپنے جلسے جو ہے وہ ارینج کرائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پارٹیسپیشن کے لیے لیڈرشپ بھی آئے گی اور شیر افضل مروت صاحب بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. شیر افضل مروت صاحب کی خاص کر ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ KPK میں بھی جائیں گے اور جلسے کریں گے. ہم سپنے کے ساتھ ہی ساتھ میں بھی جاؤں گا ایز اے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ ڈیوٹی لگائی ہے. اسی طرح عمر ایوب صاحب کی، جس کے لیے پہلے خان صاحب کی طرف سے یہی احکامات تھے کہ وہ وہاں رہے جہاں تھے اور نیکسٹ انسٹرکشن تک وہ وہاں رہے جہاں پر ہے. آج ان کے لیے بھی یہ ہدایات ہے کہ وہ بھی پارٹی کے فنکشنوں میں پنجاب اور سندھ میں جایا کریں گے، جس کی انہوں نے پہلی ابتدا کی ہے بلوچستان سے. انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے بھی خان صاحب نے انسٹرکشن دی ہے. جی کوئی کوشچن؟ ایک منٹ جی، ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات میں انہوں نے اسی کمرے میں ایک شیشے کے فریم پہ مشتمل ایک پارٹیشن بنائی اور ساتھ میں ایک بڑا سا بلب
इन्होंने लगाया और वो बल्ब जो है बेसिकली जेल हुकाम ने हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है। वो बल्ब जो है हमें इजाज़त नहीं थी कि हम उस बल्ब को चेक करते, क्योंकि ये एक नया बल्ब लगाया है और ऑलरेडी कमरे में रोशनी थी। ऐसे बल्ब जो हैं वो जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दी थी जेल हुकाम को कि खान साहब के साथ जब भी वकला की मुलाकात होगी कोई जेल का बंदा नहीं बैठेगा। आज फिर उन्होंने इस हुक्म को पामाल किया। जेल हुकाम बैठे हुए थे, उन्होंने इस आर्डर को जो है बिल्कुल जूती की नोक पे रखा। इसके अलावा ये जो पार्टीशन बनाई है, इसका वाहिद मकसद ये है कि जहाँ पे हमारे दरमियान कुसर पुसर होती थी वो भी इनके कानों तक पहुँचे। एक बात। दूसरी बात, पंजाब की क़ियादत से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास हम ऑलरेडी ताख़ीर में हैं ज़िमनी इलेक्शन में, और 19 तारीख तक हमारे पास 3 दिन है। हमें किसी भी हल्के से प्रोग्राम नहीं आए हैं कि कहाँ पे जलसा करना है, तो लिहाजा जल्द अज जल्द पार्टी से रब्ता करें ताकि हम फौरन पंजाब के लिए प्रोग्राम बना सकें। बावल नगर के एक मिनट क्या वो दूर हो गई या नहीं? मेरा तो कोई गिला शिकवा नहीं था, गिला शिकवा कोई नहीं था। खान साहब को मैंने आगाह किया कि भाई वो जो सोशल मीडिया टीम है वो चूँकि आपकी ख्वाहिश थी मैंने अबंडन कर दी है। और दूसरा मैंने ये भी बताया कि पार्टी में अगर कोई मेरे खिलाफ बयानबाजी करता था तो मैंने ये भी ऐलान किया है कि उनको जवाब भी नहीं देगा। खान ने इसको सराहा है। अच्छा, बावल नगर वाक़े पे चेयरमैन साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली खान साहब का पैगाम आप तक पहुंचाया है। एक एंगल इसमें और खान साहब ने फरमाया था जो आपके गोश गुजार करना बड़ा ज़रूरी है। खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई इदारे के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होता है या किसी शहरी के ख़िलाफ़ कोई इदारा काम करता है या कोई जुर्म सरजद होता है तो अदालतें उसका फ़ौरन बातें जाकर ख़त्म हुआ करती हैं। इस तरह कभी नहीं हुआ कि अगर किसी के ख़िलाफ़ किसी पुलिस वाले ने कोई एक्शन लिया है तो वो खुद जाकर उसको जाके सबक सिखाए और इस तरह की मारपीट करे और पाकिस्तान के कानून को हाथ में ले ले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब का ये काम बनता है कि वो कम से कम हमें तो इंसाफ नहीं दे रहे। तहरीक इंसाफ के लोगों के घर टूटे, लोगों के जहेज़ के सामान उठाए गए, उस पर किसी के कान पे जूं नहीं रुकी। कम से कम एक पुलिस के इदारे को आप खड़े होकर इंसाफ दें। अगर आप इंसाफ देंगे तो ये मुआशरा और ये मुल्क कायम रहेगा, और अगर इसी तरह से बेइंसाफ़ी रही तो ये मुल्क जो है वो मज़ीद गिरता जाएगा और हमारा सबसे बड़ा इसका नुकसान हमारे मुआशी निज़ाम के ऊपर आएगा जो पहले से गिरता जा रहा है। अगर मईशत ख़त्म होगी तो ये मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता मुल्क की जो सालमियत है उसको ख़तरा आएगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो बहुत शुक्रिया जी। और साहब ये बताइएगा कि आपने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि अप्रैल के महीने में खान साहब जेल से बाहर हुए। उनकी रिहाई की 2 ही सूरतें हैं, या तो उनकी सजाएँ ख़त्म हों या फिर बस पर्दा अगर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके नतीजे में उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। ये बताएं कि जब भी हमने खान साहब से बात की है जेल में, आपको पता है हर हफ्ते वो हर वक्त जो है इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं, हिट करते हैं, नाम ले लेते हैं। तो ये बताएं कि रिहाई उनकी कैसे मुमकिन है? क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं बस पर्दा? देखो, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं उसका याद एक बार फिर करूँगा। जहाँ तक खान साहब के रिहाई का ताल्लुक़ है वो किसी भी सूरत भी किसी डायलॉग की वजह से नहीं है, और हमने पिटीशन फ़ाइल की है हाई कोर्ट में। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं, हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कि ईद से पहले हमारे केसेस का फ़ैसला हो। अब कल की केस भी 10 दिन की ताख़ीर से आगे बढ़ा है। 3 केसेस है जिसमें बेल ज़रूरी है और सस्पेंशन और इसकी सेट असाइडिंग ज़रूरी है। अगर ये इसी तरीके से चले, उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से हमारे ख़िलाफ़ ये केसेस करा रहे थे, और 2-2 घंटे में उन्होंने कई घंटे 14-14 घंटे ट्रायल करके ये इन्होंने ट्रायल कंक्लूड की है, इस तरीके से नहीं, लेकिन रूटीन से भी अगर हियरिंग करे डे टू डे तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब अप्रैल ही के महीने में वापस आएंगे। ये बताइएगा दोस्त कि आप निजात की तरफ जा रहे हैं, आप कोयटा से आपने स्टार्ट भी ले लिया हुआ है, मुझे ये बताइएगा कि सियासत में कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते, आप मुज़ाकरात की टेबल पर क्यों नहीं जाते? एक बात एक तरफ सवाल होगी। दूसरा, आपके लिए पार्लियामेंट मौजूद है, आप अपने एहतजाज
जो भी है वो पार्लियामेंट में करें, सड़कों पे आने की बजाय अगर पार्लियामेंट के रास्ते पे अगर आप आए तो तरह ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरी बात यह है कि खान साहब ने 3 साल के जो उनके साथ जो डील और जो ऑफर हुई थी उन्होंने जिक्र किया, 2-3 दफ़ा उन्होंने डेलाजेट का उनसे बात की थी। क्या वजह है कि वो डील ऐसी, उसमें रुकावट क्या है, क्यों नहीं वो डील? देखिए, डीलों पे बिलीव बिल्कुल ही नहीं करते। किसी डील के नतीजे में न खान साहब ने बाहर आना और अगर डील करनी थी तो फिर पहले ही कर लेते। ऐसे डील ने खान साहब ने यकसर मुस्तरद किया, कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब यही फरमा रहे हैं कि मेरा मरना भी इस मुल्क में, मेरा जीना भी इस मुल्क में, लेकिन कड़े होकर जीऊँगा और आखिरी बाल तक लड़ूंगा और आवाम के हकूक़ और आज़ादी के लिए और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए मैं लड़ता रहूँगा। जहाँ तक हमारे वो आपका सवाल है एहतजाज का, एहतजाज हम पुरअमन कर रहे हैं, पार्टियों के साथ अलाइंस बना करके हम कर रहे हैं और हम अदलिया की आज़ादी के लिए कर रहे हैं। और पाम 47 की जिस तरीके से रिगिंग हुई है, ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि वो जिसके लिए वोट करे उसकी वोट में जो भी इलेक्ट होके आता हो, लेकिन इलेक्शन में रिगिंग ना हो, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो, इसके लिए हम एहतजाज करते हैं। जहाँ तक आपकी सवाल है, डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, डायलॉग हमेशा हो और पार्लियामेंट सुप्रीम में पार्लियामेंट में होने चाहिए। लेकिन आपको मैं कल का कह दूं, कल हमारा एजेंडा चलना था, हमारा ऑर्डर ऑफ द डे चलना था, हमने रिक्विजिशन कर लिया था। 4 बजे इजलास शुरू होना था, लेकिन 4 के बजाय 6 बजे इन्होंने इजलास कर लिया। आसिफा भुट्टो की ओथ करा के ख़त्म किया। एक दिन का कास्ट असम्बली का 6.5 करोड़ रुपए बनता है, आपने उसका ओथ करा कर की असम्बली बर्खास्त करी, कौम का 6.5 करोड़ का नुकसान किया। जो एजेंडा हम लेके आए थे अदलिया की आज़ादी के लिए, आपने उस पर एक लफ्ज़ नहीं कहा, आपने हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी नहीं दिया, रिक्विजिशन भी हम करें, बोलने भी हम ना दे, बोले तो आप म्यूट भी कराए, PTV पे भी स्पेस ना दे, तो इनके साथ कहाँ मुज़ाकरात होंगे। शुक्रिया आप सब लोग। अच्छा, एक बात मैं आपके सवाल के जवाब में ऐड करता हूँ। आपने मुफाहमत की बात की है, मुफाहमत बेशक हो सकती है, लेकिन अगर आपके घर में चोर आ जाए, गन पॉइंट पे आपसे अप्लाइंसेस, जेवरात, सोना, नकदी लूट के बाहर निकल के गली में बैठ के कहो कि अब आ जाओ बात कर लो, क्या अफाम व तफहीम का रास्ता है, तो इन्होंने तो डाका डाला है। अब डाका डाल के कहते हैं हमारे साथ अफाम व तफहीम करें, और फिर भी इतना ये गुजारा नहीं कर रहे हैं कि हमारे लीडर को भी पाबंद सलासल रखा है। वो डाका डाला, फिर रिजर्व सीटों पे डाका डाला, फिर आए दिन ये जो है हमें सांस लेने तक नहीं दे रहे हैं। कहते हैं मुफाहमत, हवाई बातें हैं, और फिर आखिरी बात डाकुओं से मुफाहमत नहीं होती है। दूसरी बात है जो कल की उन्होंने किया पार्लियामेंट की, वो हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बहुत सीरियस। वो हमारा राइट था, हमने रिक्विजिशन किया था, अदलिया के लिए किया था, हमें इजाज़त न देना, उमर साहब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे न बोलने देना, इसकी हम मजम्मत भी कर चुके हैं, हम मजम्मत भी कर रहे हैं। हमने स्पीकर को रिमाइंड भी कराया है कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस बने, पार्टी के वर्कर ना बने। गौर साहब ये बताइएगा, आपने हमेशा कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से आप मुफाहमत चाहते हैं और आप मामला को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन खान साहब का जो जेल का बयानिया है वो हमेशा उसकी नफी करते हैं। नहीं, देखो खान साहब ने, मैं अर्ज करूँ, बताइएगा आपका बयानिया दुरुस्त है? नहीं, खान साहब का ही बयानी है और खान साहब ही का बयानी है बड़ा कैटेगोरिकल है कि फौज भी मेरी है, फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी हमारा है। हम यही करते, किसी के साथ हम तो नहीं लड़े, हमने किसी के साथ नहीं लड़ना करना है। और हम चाहते हैं ये वो लोग होंगे जो चाहते हैं कि सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी और पाकिस्तान के किसी इदारे के दरमियान जो है ना वो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।